Let us see the next question. B company is considering diversifying its operations away from its main area of the business, food manufacturing, into the plastic business. It wishes to evaluate an investment project which involves purchase of molding machine that will cost 4,50,000 rupees. The project is expected to generate net annual operating cash flow 2,20,000 for each year for 3 years of its life, at the end of which time scrap value will be zero. The asset of the project can support debt financing of 40% of the initial cost. Bled is considering borrowing the amount from two different sources. First, local government organization has offered to lend an amount of rupees 90,000 with no issue cost at a subsidized rate of interest of only 3% per year. The full 90,000 would be repayable after 3 years. The rest of the debt would be provided by the bank at Bled's normal rate of interest. The bank loan would be repaid at the end of the third year. The balance of the finance will be provided by placing new equity. Issue cost will be 5% of the funds raised for the equity placing and 2% for the bank loan. वहाँ पे 2% है. Cost of unlevered equity is 16%. Risk-free rate of interest is 10%. Income tax rate is only 40%. The machinery is subject to straight line method of depreciation. Required, calculate APV and determine whether the project is worthwhile. That is a question. I request all of you to go through the question. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो, let us have understanding how to do answer. सबसे पहले हम लोग बेस एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं. बेस एनपीवी इज लाइक डिस्काउंटिंग ऑफ द कैश फ्लोज यूजिंग कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी. चलो डन आंसर. Calculation of base NPV. उसके अंदर लिखो स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टमेंट. Dear students, the amount of the investment is rupees 4,50,000. Step number 2 is depreciation. It is cost divided by number of years. हमारे एग्जांपल में कॉस्ट क्या दे रखा है 4.5 लाख. स्क्रैप वैल्यू कितना है 0. सो डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, डिवाइडेड बाय किया जाएगा 3 years. So I think it is 1,50,000 rupees per year. That is the way depreciation is calculated. उसके बाद स्टेप नंबर 3 टर्मिनल कैश फ्लो. टर्मिनल कैश फ्लो कितना आएगा 0. स्टेप नंबर 4 रिकरिंग कैश फ्लो. रिकरिंग कैश फ्लो कैसे किया जाएगा, इट इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्सेशन. क्वेश्चन हमको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्सेशन है ईयर 1 to ईयर 3 का 4,50,000. सिर्फ एक साल पे करते हैं.
उसके बाद डिप्रीशिएशन, ओ सॉरी 220 है, 220 है। Depreciation is an amount of 1,50,000. Profit before taxes is 70,000. इनकम टैक्स रेट हमको दे रखा है 40%, दैट कम्स टू 28,000. Profit after taxes is 60%, that comes to 42,000. Depreciation is a non-cash item, 1,50,000. तुमको क्या मिलेगा? CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, 1,92,000. Step number 5, calculation of base NPV. In that year 1 to year 3, कैश फ्लो कितना आएगा? 1,92,000. उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 16%. तो PVIFA एट 16% फॉर 3 years. बताइए तो 16% 3 years का फैक्टर समेशन क्या है? 2.2459. प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 4,31,000. थैंक यू वेरी मच. फ्रैक्शन आएंगे ओके. $4,31,213 बस. उसके सामने इन्वेस्टमेंट होगा 4.5 लाख का. तो ये हमारा हो जाएगा बेस एनपीवी. इट इज नेगेटिव 18,787. चलो गेट ऑन आंसर. चलो उसके बाद राइट डाउन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एपीवी. APV stands for adjusted present value. Working note number 1, calculation of amount of borrowing. देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है थर्ड लाइन में, दैट विच इन्वॉल्व्स द परचेस ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 4,50,000. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट 4,50,000. 4,50,000 का हम लोग बाइफर्केशन लिखेंगे. There is one component of equity financing and another component of the debt financing. So one is equity component, another is debt component. क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? The assets of the company can support debt financing of 40%. So यहाँ पे 40%, यानी कितना होगा? 1,80,000. और ये 60%. I think that it would be 2,70,000. Check my calculation error. First, अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? B is considering borrowing this amount from two sources of the finance. First, local government organization offered to lend 90,000 with no issue cost. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 90,000. उसके लिए द इश्यू कॉस्ट इज 0. उसके बाद क्या हमको क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड फुल 90,000 पेएबल एंड आफ्टर 3 years. यानी पूरा का पूरा पेमेंट आपको करना पड़ेगा 3 साल के बाद. रिमेनिंग 90,000 है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर.
क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट issue cost will be 5% of the funds raised for the equity placing and 2% for the bank loan. यानी ये बैंक लोन है. See, language of the question is clearly providing to us like this. देखो ये वाला portion. The rest of the debt would be provided by the bank. These at normal rate of interest. The bank loan would be repaid again at the end of the third year. इश्यू कॉस्ट दे रखा है हमको और यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट्स द 2% इज द फॉर बैंक लोन, 2% का खर्चा है. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 90,000 डिवाइडेड बाय 1 minus 0.02. So this is the amount of the equity, that is say the bank loan that say we are supposed to obtain. So that is 90,000 divided by 0.98. So it is 91,837. और ये जो हमारा नॉर्मल बैंक लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 10%. चलो नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 2. Calculation of present value of interest tax savings. So year 1 to year 3 हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स. देखो हमने ये जो लोन लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. हाँ वो बाद में करते हैं. 91,837 इंटू 10% प्लस ये जो दूसरा लोन है 90,000 उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%. तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया. टोटल इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग हो जाएगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से हमारे एग्जाम्पल में दैट इज 91,837 का 10%, दैट इज ओके. So 2,700 plus 9183.7. So 11,883.7 इंटू क्या करेंगे 40%. So 4,753. ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग हो जाएगा. उसे हमें डिस्काउंट करना है कौन से रेट से, 10% के रेट से. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PVIFA at the rate of 10% for 3 years. और फिर हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देखो तो एन्युइटी फैक्टर कितना आता है, 2.4869. $11,820. Next, working note number 3, calculation of present value of cheap loan. है ना, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%. हमको सब्सिडाइज इंटरेस्ट कितना मिला 3%, यानी 7% का सेविंग्स हुआ. तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. सो ईयर 1 to year 3 savings of interest
90,000 का लोन अमाउंट है, हमको इंटरेस्ट का सेविंग्स कितना हो रहा है 7% का, दैट कम्स टू 6,300. टैक्स ऑन इंटरेस्ट, आई एम सॉरी, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट लॉस, इतना इंटरेस्ट भरते तो उसका टैक्स सेविंग मिलता. तो 6,300 का 40% देखो तो कितना आ रहा है 2520 शायद. नेट सेविंग्स, नेट सेविंग्स कितना आ रहा है 27. थैंक यू. अगेन इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%. PVIFA एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years. सो कितना आता है आंसर उसका 2.4869. So 3780 into 2.4869, 9,400. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. चलो लास्ट एपीवी का आंसर आप लोग अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ. एपीवी मैंने इतना वर्किंग करके दिया आपको, अभी सिर्फ एपीवी करो आप. चलो डाउन आंसर. एपीवी इट इज बेस एनपीवी जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. हमारे एग्जांपल में बेस एनपीवी कितना है, हमारे एग्जांपल में बेस एनपीवी है 18,787 नेगेटिव. चलो डाउन आंसर 18,787 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग, यानी इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का क्या मिलेगा, हमको फायदा मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग 11,820. सो प्लस क्या किया जाए 11,820 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चीप लोन, सस्ता लोन मिलने का फायदा है वापस, कितना 9,400 का फायदा है, तो उसको भी ऐड करेंगे. माइनस हम लोग क्या करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट और अ काइंड ऑफ द लोन प्रोसेसिंग चार्ज. वी अंडरस्टैंड एट से जो भी हम लोगों ने बैंक लोन लिया है, बैंक लोन का देखो हमने बैंक लोन कितना लिया है 91,837, तो उसका 2%. सो वी अंडरस्टैंड एट से द 91,837 उसका 2%. ये क्या होगा लोन प्रोसेसिंग चार्ज होगा, दैट इज 1837. लॉजिकली वी अंडरस्टैंड इट इज 1837. उसके अलावा जो भी हम लोग इक्विटी इश्यू करने वाले कितना 2,70,000, उसमें भी हमको क्या दे रखा है, उसमें भी हमको दे रखा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट है 5% का. ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दैट्स हमको दे रखा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट है 5% का. सो माइनस क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाय 0.95, तो ये ग्रॉस अप वैल्यू हो जाएगा. माइनस क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 2,70,000, या तो इंटू 5% करोगे तो भी सेम ही आंसर आ जाएगा. सो नेगेटिव 18,787 प्लस 11,820 प्लस 9,400 माइनस 1837 माइनस देखो तो माइनस कितना आता है 14,211. So what is final answer?
चलो गेट ऑन आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लेट्स से यहाँ पे एपीवी पॉजिटिव है इसलिए हमको प्रोजेक्ट लेना चाहिए। ओ सॉरी एपीवी नेगेटिव है हम लोग मना करेंगे कि प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। चलो डन आंसर। एक छोटा सा समरी पूरे आंसर का। सबसे पहले हम लोग बेस एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं। बेस एनपीवी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? इन्वेस्टमेंट, डिप्रीशिएशन, टर्मिनल कैश फ्लो, रिकरिंग कैश फ्लो। ये जो भी रिकरिंग कैश फ्लो उसको डिस्काउंट किया जाएगा यूजिंग द यूजिंग द कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी एंड दैट इज द वे द बेस एनपीवी इज फाउंड। अनफॉर्चुनेटली इट इज नेगेटिव। उसके बाद एपीवी के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ द बोरोइंग का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो इंटरेस्ट का आंसर गलत हो जाएगा। जो भी अमाउंट ऑफ द फाइनेंस है उसका सेग्रीगेशन किया इक्विटी और डेट में, डेट का बाइफर्केशन किया। दो बैंक लोन है और एक सब्सिडाइड रेट है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का कैलकुलेशन किया। दोनों इंटरेस्ट को जोड़ के इंटरेस्ट टैक्स सेविंग उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट किया। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द चीप लोन उसका कैलकुलेशन किया हमने। दैट इज व्हाट न्यू पॉइंट दैट वी हैव इन दिस एग्जांपल। And then say taking into account the base NPV, present value of interest tax saving, present value of the cheap loan minus flotation cost, ऐसा करके हमने APV का कैलकुलेशन किया। अनफॉर्चुनेटली APV नेगेटिव है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।